Yes. Is it visible? Write in the chat box. Okay, I think it is visible. Okay. See, we have seen a differentiation topic, right? What is derivative? Suppose that a function is given, and at particular point, if you want to find a slope, that is its derivative. And what is integration? Integration is nothing but area under curve. Suppose that this is the curve, right? And this is the area under this curve, right? This is called as integration. But what is definite integral and what is indefinite integral? If we limit this area from particular point, suppose that this A, suppose that this is x-axis, y-axis, right? Suppose that 2 to 5, and the graph is f of x. It may be, suppose that 2x square plus 3, let it be. So 2x plus 3, if limit is not there, then this is the area under this whole curve, right? And suppose that limit is mentioned 2 to 5, then area under this part only. So for this you are getting scalar quantity, right? Okay, area is scalar. So in this way, the main purpose of finding integration is finding the area under particular curve, right? Whose limiting values are given. Plane is a space and its p by q is left. Okay, line and plane you are telling. Okay, for chapter line and plane, p by q is left. Okay, I will take that also. Now see, these are the basic things I think you are aware that suppose that derivative of sin x is cos x, then integration of cos x is sin x, right? So it is the anti-process and formulas are totally opposite. Suppose that derivative of x is 1, then what is the integration of 1 into x? 1 into dx, that is x plus c. This c is important. This c, why it is? Because this is indefinite integral. Limiting values are not there, then c always comes, right? तो डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आपको पता है. वंस अगेन आई एम रिपीटिंग द इंटीग्रेशन फॉर्मूला. इंटीग्रेशन ऑफ x रेज़ टू n होता है x रेज़ टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c. 1 into dx का इंटीग्रेशन होता है x प्लस c. cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos x. देखो tan x किसी का डेरिवेटिव नहीं है डायरेक्ट में, राइट? क्योंकि sin x का डेरिवेटिव cos x है, cos का माइनस sin x है, tan का sec स्क्वायर x है. तो tan किसी का इंटीग्रेशन नहीं है, तो ये फॉर्मूले में नहीं आएगा. सो जिसका पहला डेरिवेटिव आता है वो फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन है. sec स्क्वायर x किसका है डेरिवेटिव? tan x का, राइट? सो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x. cosec स्क्वायर x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस cot x. sec x इंटू tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x, while cosec x इंटू cot x का इंटीग्रेशन हो जाएगा minus cosec x, right? So these are the basic formulas, antiderivative. Next, इनवर्स फंक्शन में साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस पार्ट, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है साइन इनवर्स एक्स. 1 मिनट. सिमिलरली इसी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, जहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर. tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. सो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x. सिमिलरली दिस इज फॉर माइनस cot इनवर्स x.
सेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन मॉड एक्स इंटू रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। सिमिलरली कोसेक इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन होता है -1 आता है, बट यहाँ पर माइनस ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में दिया है, देन इट इज 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 का डेरिवेटिव होता है, इंटीग्रेशन होता है माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ई रेज टू एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू एक्स होता है, ई रेज टू एक्स का इंटीग्रेशन भी ई रेज टू एक्स प्लस सी आता है, सी तो हमेशा आएगा। log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी। नाउ सी a रेज टू x का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x इनटू log a, उसी को मॉडिफाई कर दिया, a रेज टू x अपॉन log a का डेरिवेटिव होता है a रेज टू x, while a रेज टू x dx का इंटीग्रेशन होता है a रेज टू x अपॉन log a प्लस c। So these were the does NIMS have institutional quota? One boy is asking, does NIMS have institutional quota? Wait, one phone call is there. Yes, Pratima ma'am. Yes ma'am. हाँ लेक्चर में था, अभी लेक्चर में था, बोलिए। हाँ, one boy he was asking NIMS have institutional quota, तो बेटा वहां पे ही पूछना पड़ेगा आपको। जनरली एवरी इंस्टीट्यूट हैव इट्स ओन कोटा, 20% होता है, पूछ लेना। इंस्टीट्यूशनल कोटा होता है। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कौन कौन से? इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड है। जैसे कि जब एग्जांपल आएंगे तब हम ले लेंगे। ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन ऑफ u डॉट v पता है आपको, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, दैट आल्सो विल डिस्कस। नाउ इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में एक एग्जांपल दिया है, जब हम एमसीक्यू लेंगे तब आपको पता चल जाएगा। इसमें स्पेशल इंटीग्रल, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस व्हिच आई वांट टू राइट। इफ यू वांट टू नोट डाउन, you can note down. फर्स्ट है f dash of x upon f of x। नीचे का फंक्शन का अगर ऊपर डेरिवेटिव दिया है तो इसका आंसर रहता है log of f of x plus c। Then suppose that f of x raised to n into f dash of x दिया है, तो उसका इंटीग्रेशन आएगा f of x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c, राइट। सो इसके बेस भी क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ कंपोजिट फंक्शन, द सेम फॉर्मूले अगेन ही हैज रिटन। tan x का अगर मुझे इंटीग्रेशन निकालना है तो मैं ये फॉर्मूले से निकाल सकता हूँ, आपको भी पता होगा। Suppose that if I want to find out integration of tan x, so I can write this as sin x upon cos x into dx. So cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस sin x, बट यहाँ पर प्लस है। So can I multiply numerator and denominator by minus? So it will be in form of f dash of x upon f of x into dx, that is log of f of x plus c. So it will be minus log of फंक्शन क्या है आपका cos of x plus c, बट यहाँ पर माइनस साइन है, then it will be log of sec x plus c. So this is the integration of tan x. Understood? Okay, zoom करना है, ठीक है, मैं zoom करूंगा। So ये जो स्पेशल इंटीग्रेशन है, आप tan x का इंटीग्रेशन, सिमिलरली cot x का इंटीग्रेशन निकाल सकते हो, राइट। सो फर्स्ट थिंग तो बेसिक फॉर्मूलाज हो गया, जो कि जिस फंक्शन, जो फंक्शन किसी ना किसी का तो डेरिवेटिव है तो उसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो ओरिजिनल फंक्शन, राइट। नेक्स्ट स्टेप, अगर फंक्शन किसी का डेरिवेटिव नहीं है तो आपको बाय 3 मेथड्स है। पहला सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन में tan x का इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना था, बिकॉज tan x इज नॉट डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन। सो tan x को मैंने sin x अपॉन cos x ले लिया, नीचे फंक्शन है cos x, उसका डेरिवेटिव
ऊपर नहीं है, ऊपर करने के लिए माइनस से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिया तो माइनस कॉस एक्स हो गया, माइनस साइन एक्स हो गया ऊपर। सो कॉस एक्स का डेरिवेटिव जो है ऊपर न्यूमरेटर में है, सो इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, जिसका आंसर आता है log ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। बट यहाँ पर माइनस था तो माइनस के लिए कॉस का सेक बन गया। सो इन दिस वे you can find the integrations. Next, similarly tan का तो मैंने बता दिया। Next sec का क्या हो जाएगा? I think now it is visible. I'll send the PDF also. अभी क्लियर है? Next, wait one minute. By the same formula, you can write the derivative of sec x log of sec x plus tan x. Cosec x का derivative integration सॉरी होता है log of cosec x minus cot x plus c. Now, अगर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, you know that x raised to n, suppose that 3x square plus 7 raised to 5, उसका इंटीग्रेशन निकालना है हमें, right? So you can consider this function as any substitution, right? Suppose if you substitute this as t, then t to the power 5 into dx, right? So it will be what? 3x square plus 7 raised to 6 by 6 into 1 upon derivative of this 3x square plus 7. So it will be 6x, right? So in this way, this is the formula, first formula of composite function. If function is ax plus b raised to n into dx, then its integration is ax plus b raised to n plus 1 upon a n plus 1, right? Yes. Sir, that formula is telling ax plus b, right? We have taken it as ax square plus b, so it will be different, yes. ना? Any formula, x to the power n भी ले ले, x to the power कुछ भी ले ले, कोई भी फंक्शन ले ले ना, फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो ये दिया है, यहाँ पर लीनियर लिया है x to the power 1, मैंने स्क्वायर ले लिया, कुछ फर्क नहीं पड़ता, उस जो फंक्शन है कंपोजिट उसका डेरिवेटिव नीचे लेना है, अंडरस्टूड? यहाँ पर ax लगा था इसलिए उन्होंने a लगा है, राइट? ax स्क्वायर होता तो उसका 2a आता फिर, राइट? अंडरस्टूड? 2x आता। हाँ, नेक्स्ट। नाउ सेम वे साइन समथिंग का इंटीग्रेशन क्या होगा? साइन का इंटीग्रेशन होता है कॉस समथिंग और फिर से इसका डेरिवेटिव। सपोज दैट इफ आई वांट टू टेक साइन ऑफ कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन बोलो, कोई भी फंक्शन बोलो, 3e raised to 2 plus 7 into dx, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा? सेम, माइनस कॉस 3e raised to 2 plus 7 divided by इसका इंटीग्रेशन, राइट? So these are the basic things. Okay, 3e raised to हाँ ठीक है, इसका डेरिवेटिव ले लो नीचे प्लस सी। Next, what will be the integration of cot something? कॉट का भी वही फॉर्मूला 1 अपॉन ए। 1 अपॉन ए क्यों है? क्योंकि यहाँ पर समथिंग फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, अंडरस्टूड? नेक्स्ट, सिमिलरली सेक ऑफ कंपोजिट फंक्शन, cosec of composite function, sec of composite function and cosec of composite function into cot. So these are the standard formulas but converted into composite form.
Now look here. These are special integrals. Suppose that 1 upon x square minus a square is equals to क्या आएगा 2a log of. देखो ये तीन स्पेशल इंटीग्रल्स है जिसमें suppose that if I want to find integration of 1 upon x square plus 7 और माइनस भी होगा या फिर 49 है या फिर जो suppose that 2x square plus 49 है, so what will be the, so I can write as root 2x whole square plus 2, suppose that a square है whole square into dx. In this case this will be my x, this will be my a, right? So x और a मालूम है तो यहाँ पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, you will get the answer. So जहां पर माइनस है वहां पर 1/2 है तो तीनों में भी कॉमन है, सॉरी दो फर्स्ट दो में कॉमन है, बिकॉज यू नो दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये किसका डेरिवेटिव है tan इनवर्स x का, राइट? सो उसका इंटीग्रल उसी फॉर्म में आएगा tan इनवर्स ऑफ x बाय a 1/a प्लस c. सिमिलरली 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर होगा या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, ये किसी का डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव नहीं है. सो फॉर दिस द फॉर्मूला इज 1/2a log ऑफ, अगर ये माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, अगर x स्टार्टिंग में, अगर a स्टार्टिंग में है तो ऊपर प्लस और नीचे माइनस. ओके, सो ये फॉर्मूला ध्यान में रखो. Similarly for this also, so there are totally 9 formulas, 9 special integrals. पहले विदाउट स्क्वायर रूट वाले, नेक्स्ट स्क्वायर रूट वाले. So if it is root x square minus a square अगर होगा तो log of x plus root x square minus a square plus c. Next, अगर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगा देन log ऑफ एक्स प्लस, अगर यहाँ पर माइनस होता देन इट विल बी, इट वाज माइनस हियर, राइट? नाउ रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो डेरिवेटिव होता है साइन इनवर्स एक्स का, राइट? सो इस फॉर्म में है a square minus x square, so its integration is minus sin inverse of x by a plus c. Next, these are the substitution. कौन से substitution करना है देखो, a square minus x square या root a square minus x square होगा तो x को a sin theta और a cos theta रख दो. So these are the few things you have to remember. Now एक्चुअल इंटीग्रेशन आपका यहां से शुरू होता है. देखो 1 अपॉन लीनियर या फिर 1 अपॉन, सॉरी 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक. देखो अपने पास स्पेशल इंटीग्रल तो मैंने बताया 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? और 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर. These were the integrations, right? Now you know these are the special integrals, but if the question is in 1 upon quadratic और 1 upon root quadratic अगर होगा तो उस क्वेश्चन को आपको स्पेशल इंटीग्रल्स में लाना पड़ेगा, राइट? बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड. अंडरस्टूड? हाँ एक मिनट.
हाँ लुक हियर, इफ इट इज 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक अगर होगा तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से आपको एक तो ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर में लाओगे इसे, और रूट में होगा तो 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर में लाओगे। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। सपोज दैट इफ आई वांट टू फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी एक ले लो ना, एक्स स्क्वायर, चलो ठीक है, एक रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं। रूट सॉरी 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7 ले लिया। अगर यहाँ पर 10 होता तो आराम से मुझे, अगर 10 होता तो 1 अपॉन इजीली मैं फाइंड आउट कर सकता था 10 के रूट। और अगर यहाँ पर 10 होता और यहाँ पर अगर 7 होता तो 5 प्लस 7, अगर x प्लस 5 x प्लस 7 अगर होगा तो वो मेरा बन जाता पार्शियल फ्रैक्शन में, राइट। बट यहाँ पर कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, मींस रूट्स नहीं मिल रहे मुझे, तो बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड मुझे करना पड़ेगा। सो फॉर दैट b/2 होल स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सो व्हाट इज b हियर? 5। सो 5/2 का स्क्वायर दैट इज 10/4। 10/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा मुझे, 10/4 माइनस 10/4, राइट। नाउ इफ आई टेक दिस, प्लस है तो ये प्लस ले लो, सो इट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10/4 प्लस 7 minus 10/4. So it will be, this is nothing but completing square method किया ना, completing square method में आपको क्या मिलेगा, वो पर्टिकुलर किसी ना किसी का तो स्क्वायर होगा, राइट। सो दिस इज स्क्वायर ऑफ पहले का स्क्वायर रूट, मिडिल वाले का साइन और इसका स्क्वायर रूट। सो दिस इज 10 का तो स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो रूट 10/2 चलेगा, होल स्क्वायर। नाउ 7 4 जा 28 minus 10 18, 18/4 ये किस चीज का स्क्वायर है? रूट 18/2 लिख सकता हूं मैं, राइट। दैट इज 3√2, 3√2/2, 3√2/2 होल स्क्वायर, राइट। सो मुझे बताइए ये इस फॉर्म में हो गया 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका इंटीग्रेशन मुझे पता है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टैन के फॉर्म में है, मींस 1 अपॉन ए क्या है यहाँ पर आपका, दिस विल बी योर एक्स, दिस विल बी योर ए। सो 1 अपॉन ए 3√2/2 इंटू tan इनवर्स x बाय ए। सो x इज मेरा x प्लस √10/2 बाय ए क्या है मेरा 3√2/2 प्लस सी। सो जहां पर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक अगर होगा 3/√2, अच्छा 3/√, हाँ दैट आई विल सिंपलीफाई 3/√2। सो मेरे पास 1 अपॉन क्वाड्रेटिक होगा या फिर 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होगा, तो मुझे क्या करना है, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से उसे स्पेशल इंटीग्रल में लाना है, ओके, एंड देन आई कैन इजीली फाइंड आउट इट्स इंटीग्रेशन, ओके क्लियर। नेक्स्ट, अगर इफ इट इज नॉट 1 अपॉन क्वाड्रेटिक या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक नहीं है, अभी लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक है। देखो यहाँ पर लीनियर है px प्लस क्यू और क्वाड्रेटिक है, लीनियर है रूट क्वाड्रेटिक है, तो उस केस में क्या करना है, एक्सप्रेस डिनोमिनेटर एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर
प्लस बी, एक्सप्रेस न्यूमरेटर एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस बी। उसका क्या फायदा होगा मैं एग्जांपल के साथ बताता हूं। सपोज दैट एक मिनट, हाँ ओके हमारा नीचे गया फिर से, वेट 1 मिनट, 1 अपॉन क्वाड्रेट, हाँ इधर ही तो, ठीक है। सो वी वर टॉकिंग अबाउट दिस। देखो अगर मेरे पास अभी मैंने जो क्वेश्चन लिया था 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस इधर 10 लिया था, इधर सपोज दैट 7x लिया था, राइट? 7x नहीं, इधर सपोज दैट 8x है। देन इट वाज इजीली कन्वर्टेड इनटू वन स्पेशल इंटीग्रल बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। बट अगर वहां पर इंस्टेड ऑफ 1 यहां पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक या फिर लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक अगर होगा तो क्या करना है? सपोज दैट 3x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 ये दिया है, मुझे इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। देखो यहां पर लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, राइट? सो एक्सप्रेस न्यूमरेटर मीन्स 3x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव क्या है मैं डायरेक्ट लिख दूं, 2x plus 7. या 2x plus 7 plus b, right? So it will be 3x plus 2 2ax plus 7a plus b, right? So if I'll take a as common then it is 2x plus okay, हाँ x वाला अगर टर्म कॉमन निकालते हो, राइट? देखो ये फर्स्ट बन जाएगा 2ax plus 7a plus b, right? नाउ इक्वेटिंग, इधर ही इक्वेट कर दो, इक्वेटिंग अगर आप इक्वेट करते हो x वाला टर्म, देखो x कहां पर लगा है 2ax को, सो 3x इज इक्वल टू 2ax, x कट गया तो a बन जाएगा 3/2, a बन जाएगा मेरा 3/2 और b क्या बन जाएगा? देखो 7a प्लस b है 2, 7a प्लस b है 2, तो a तो 3/2 था, 7 into 3/2 plus b is equals to 2, so b will be my what? b will be 2 minus 21/2, that is 4 minus 21/2, 17 18 19 20 21 minus 17/2 बन गया b। सो अभी मैं क्या करता हूं, इस फंक्शन को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इस फंक्शन को a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर क्या है, इस इंटीग्रल को i इज इक्वल टू a इंटू मेरी a की वैल्यू क्या आ गई है 3/2, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 7 प्लस b क्या है माइनस 17/2, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। सो मैंने पूरे क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा। अब मुझे इजी फाइंड आउट हो जाएगा, ये 3/2 बाहर आ गया, स्प्लिट कर दो इसे, पहला इंटीग्रल और दूसरा इंटीग्रल, सो 2x प्लस 7 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस माइनस 17/2 बाहर आ गया, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3। अभी मुझे बताइए ये किस फॉर्म में है? ये इस फॉर्म में है Y quadratic. या ये है 3/2
ये एफ डैश ऑफ एक्स ऊपर डेरिवेटिव चल रहा है, एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इस फॉर्म में है, जिसका क्या आंसर आता है लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी, क्योंकि ऊपर डेरिवेटिव चल रहा है ना, सो कैन आई राइट दिस डायरेक्ट आंसर लॉग ऑफ, इसका डेरिवेटिव ऊपर है दिस, दैट्स व्हाई वी हैव एक्सप्रेस दिस सिंपलीफाई करने के लिए। तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 माइनस 17/2, और ये क्या बन जाएगा फिर से 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म में, जिसका आंसर आपको इजीली कर सकते हो स्पेशल इंटीग्रल से। सो इन दिस वे राइट डाउन सी, सो दिस विल बी द मेन पर्पस। अगर यहाँ पर रूट होता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, अगर रूट होता तो भी एक्सप्रेस a इंटू ए न्यूमरेटर एज a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। सिर्फ कहां पर फर्क होता, यहाँ पर रूट होता, यहाँ पर रूट होता, यहाँ पर रूट होता, ये f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x होता, टू f ऑफ x प्लस c होता इसका आंसर, राइट। एंड 3 log fx आता, 2 log of f of x प्लस, राइट, और ये 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक होता। सो दिस इज द थिंग। तो हमने 6 स्पेशल इंटीग्रल देखे, देन 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल देखा, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का इंटीग्रल देखा, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक देखा, लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक देखा। ओके, बेसिक 3 फॉर्मूलेज, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x, f डैश ऑफ x अपॉन f ऑफ x उसका इंटीग्रल, f डैश ऑफ x अपॉन रूट f ऑफ x का इंटीग्रल, और f ऑफ x रेज टू n इंटू f डैश ऑफ x उसका इंटीग्रल। और पहले तो बेसिक स्टैंडर्ड फॉर्मूलेज थे, जो किसी ना किसी की तो डेरिवेटिव है उसका इंटीग्रेशन तो फॉर्मूले से आएगा। नाउ नेक्स्ट द मेथड इज दैट इंटीग्रेशन बाय, ओके, और भी कुछ है, जैसे कि इस फॉर्म का अगर होगा सब्स्टिट्यूशन मेथड, देखो हमारे पास एक तो इस फॉर्म में होगा 1 अपॉन a साइन स्क्वायर x प्लस b कॉस स्क्वायर x प्लस c, या फिर ये माइनस होगा, या फिर 1 प्लस b साइन स्क्वायर, जहां पर आपको इस फॉर्म में होता है, जहां पर साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है, स्क्वायर अगर दिखा तो आपको सब्स्टिट्यूट करना है पुट, अगर स्क्वायर होगा तो पुट tan x इज इक्वल टू t। ये क्यों सब्स्टिट्यूट करना होता है, देखो अगर आप tan x को t रख दिया तो आपका डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, जो कि शॉर्टकट मैं दे दूंगा आपको। तो इस क्वेश्चन के आंसर्स फाइंड आउट करने की ट्रिक बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूले में डाल सकते हो, राइट। सो स्क्वायर होगा तो tan x इज इक्वल टू t, और सिंगल होता, इंस्टेड ऑफ स्क्वायर सिंगल होता तो होता tan x बाई 2 इज इक्वल टू t। ओके, फिर से वो स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। देखो ये सिंगल अगर होगा नीचे, देन पुट tan x स्क्वायर बाई t इज इक्वल टू tan x बाई 2 इज इक्वल टू t, राइट। नेक्स्ट, अगर ये ABCD फॉर्म में है उसका भी शॉर्टकट मैं बताऊंगा, डायरेक्ट ये है आंसर, जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बता दूंगा। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जूम कर लेता हूं। इज इट विजिबल, ये दिख रहा है? यस सर। ओके, देखो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, मैक्सिमम इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। देखो यहाँ पर लीनियर है और उसके फैक्टर्स दिए, डायरेक्ट फैक्टर्स दिए, मैंने एक क्वेश्चन बताया था ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x 7x प्लस 10 अगर होगा तो उसके फैक्टर्स आएंगे, अगर ऊपर लीनियर होगा। तो इस टाइप के अगर नीचे फैक्टर प्लस और माइनस होगा तो उसे एक्सप्रेस करो a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। सपोज दैट 5x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 और x माइनस 1 दिया है, इसका मुझे इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है। तो मुझे पता है इसके फैक्टर्स डायरेक्ट दिए हैं, राइट, और पावर 1 है, तो उसे मैं
कैन आई एक्सप्रेस दिस एज a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकेंड. इसे एक्सप्रेस करना है 5x प्लस 3 अपॉन x प्लस 2 x माइनस 1. डिनोमिनेटर तो हट जाएगा बट a दोनों का एलसीएम करने के लिए मुझे a को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 1 से और b को x प्लस 2 से. नीचे डिनोमिनेटर आएगा x प्लस 2 x माइनस 1 जो कि x प्लस 2 x माइनस 1 इसका डिनोमिनेटर हट जाएगा. राइट. सो नथिंग बट 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 5x प्लस 3 आएगा मेरा ax माइनस a. सॉरी डायरेक्ट भी कर सकते चलो a इंटू x माइनस 1 प्लस b इंटू x प्लस 2. a और b फाइंड आउट करो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. अभी देखो a फाइंड आउट करने के लिए मुझे a रखना है तो b को 0 करना है तो मुझे आई हैव टू पुट x इज इक्वल टू -2. x -2 रखना पड़ेगा तो b हट जाएगा. तो ये साइड भी -2 रख दो तो ये बन जाएगा -10 प्लस 3 इज इक्वल टू a. x की जगह -2 -1 -3 और प्लस 0 हो जाएगा. सो a विल बी व्हाट? a विल बी -7 बाय -3. सो 7 बाय 3 a आ जाएगा, b आ जाएगा सपोज दैट 4 बाय 2 या 4 बाय 3. सो द आंसर यू कैन राइट इन दिस फॉर्म. a बन गया था मेरा 7 बाय 3 राइट अपॉन जो फर्स्ट है प्लस b क्या है मेरा 4 बाय 3. सेकेंड सेपरेट इंटीग्रल ले लो, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा 7 बाय 3 1 अपॉन समथिंग मींस log ऑफ दिस प्लस 4 बाय 3 log ऑफ सेकेंड प्लस c. So in this way you can easily write. Sir, what is a and b? Okay, a और b क्या है? Good, nice question. देखो बेटा इसे सिंप्लीफाई करने के लिए a और b इस जो है ना जो रैशनल फॉर्म को पार्शियल फॉर्म में लिखना है तो a और b कांस्टेंट पकड़ना है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है और इसका मैं डायरेक्ट आंसर लिख सकता हूं. देखो कोई भी क्वेश्चन अगर होगा इस टाइप का लीनियर अपॉन उसके फैक्टर्स दिए हैं, इसका इंटीग्रल होता है a अपॉन समथिंग. सो इसे a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन फर्स्ट सेकेंड फैक्टर लिखो, a और b की वैल्यू फाइंड आउट करो. यहां पर रख दो, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा इंटू लॉग ऑफ x माइनस a प्लस b लॉग ऑफ x माइनस b. सो सबके डायरेक्ट आंसर मैं लिख देता हूं. यहां पर अगर इस टाइप का होगा क्वेश्चन डायरेक्ट आप लिख पाओगे a इंटू लॉग ऑफ x माइनस a प्लस b इंटू लॉग ऑफ x माइनस b. a और b कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना होता है. समझ गया बेटा? OEPGC का 2011-42. हाँ, one boy is asking me, sir, from which book you are referring? This is a good book. This is अरिहंत. अरिहंत का बुक है बेटा ये. अरिहंत का मुझे अच्छा लगा इंटीग्रेशन के लिए. इसके पूरे नोट्स दे दूंगा. आज ही मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसे ले रहा हूँ. सो टुडे आई एम सेंडिंग. बहुत ही अच्छी तरह से क्वेश्चन डिजाइन है इसमें. जब हम MCQ लेंगे ना तब पता चलेगा. So one point was clear about this. Now the second, अगर हमारा देखो स्टार्टिंग में क्या है x माइनस b दिया, प्लस b होगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा. नाउ अगर मेरा कोई पर्टिकुलर मीन्स 3x प्लस 2 और x माइनस 1 का थर्ड पावर दिया है या सेकेंड पावर दिया है, चलो तो सेकेंड पावर दिया मीन्स वही दो बार है ना, तो स्टूडेंट क्या करेंगे x माइनस वन ऐसा लिखेंगे. बट ऐसा नहीं है. अगर पावर 2 है तो वो खुद एक बार लिखो और देन x माइनस 1 का स्क्वायर. राइट. अगर 3 इंडिविजुअल है तो ABC. अगर क्वाड्रेटिक है नीचे एक का 2 पावर है x माइनस b है
देन a अपॉन x माइनस a, कभी भी स्क्वायर होगा तो पहली बार सिंगल आएगा, नेक्स्ट टाइम सेकेंड 2 बार आएगा, राइट? सो x माइनस a होल स्क्वायर प्लस and then c upon x minus b. Understood? So these are rational forms and these are the partial forms. Understood? चलो, कुछ डाउट है यहाँ तक? So this was a theory part of this topic. Again, few things are mentioned here. Integration by parts. वो तो पता है, u into v rule. First as it is derivative of second. है ना? First as it is integration of second minus integral of derivative of first into integration of second, right? One minute. Huh? Highlight rule use करो. Suppose that if I want to find integration of sin inverse x e raised to 2x, मुझे बताइए इसका इंटीग्रेशन मुझे फाइंड आउट करना है. कैसे फाइंड आउट करूंगा? हाईलाइट में पहला इनवर्स आएगा, क्योंकि इनवर्स का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है. दैट्स व्हाई फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन में उस फॉर्मूले में कभी उस फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता है. ओके, सो this will be my, according to this rule, this will be my first function and exponential will be last function, second function, right? So from this, first as it is integration of second minus integral of derivative of first integration of second. तो देखो जहां जहां पर फर्स्ट दिखता है, फर्स्ट में डेरिवेटिव है, इंटीग्रेशन नहीं है, मींस जिस फंक्शन का आपको इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना डिफिकल्ट लगता है उसे फर्स्ट फंक्शन लेना है. अंडरस्टूड? दिस इज नॉट फिक्स एवरीवेयर दैट यू हैव टू फॉलो हाईलाइट रूल. नाउ फर्स्ट एज इट इज, इट मींस sin इनवर्स x, इसका इंटीग्रेशन आएगा. इंटीग्रेशन ऑफ e raised to 2x का इंटीग्रेशन में डायरेक्ट लिख सकता हूं, e raised to 2x by 2, सॉरी हाँ, e raised to 2x by 2 माइनस इंटीग्रल ऑफ फर्स्ट का डेरिवेटिव sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट? देन इंटीग्रल ऑफ सेकंड का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, e raised to 2x का अगेन e raised to 2x by 2, राइट? नाउ दिस part you have to find integration and this will be your final answer. Plus c is must because we are dealing with indefinite integration. Understood? One boy he was asking me, sir, इंटीग्रेशन में कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं? इंटीग्रेशन में जनरली 3-4 क्वेश्चन आ सकते हैं. इंडेफिनाइट पे 3 क्वेश्चन, डेफिनाइट पे 2 और एरिया अंडर कर्व पे 1 या 2 क्वेश्चन आ सकते हैं. मींस 6 अगर क्वेश्चन पकड़ते हैं आप, 6 या 7, तो 14 मार्क का एक ही टॉपिक हो जाएगा. मींस एक ही पार्ट हो जाएगा इंटीग्रल कैलकुलस, 14 to 20 मार्क्स तक. ओके सर, इंटीग्रेशन में आस्क मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम ट्रिगो और क्वाड्रेटिक. देखो इंटीग्रेशन में ज्यादा फोकस आपका स्पेशल इंटीग्रल्स में. देखो मैंने तो पहले बताया स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन तो कोई नहीं पूछेगा, इजी होता है वो एंटी डेरिवेटिव वाला. नेक्स्ट आता है एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स और एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स, उस पे एक क्वेश्चन हो सकता है. देन स्पेशल इंटीग्रल जो मैंने 6 बताया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस और माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस और प्लस एक्स स्क्वायर. So based upon this, one question will be there. 1 upon quadratic, 1 upon root quadratic, linear upon quadratic या linear upon root quadratic. इस पे एक होगा.
ओके, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स पे होता है जनरली क्वेश्चन। So now we'll start with actual questions. See, कर पाओगे आप? पहला बहुत इजी है। A, right? See, we have to find this is derivative of f dash of x is this. Then what is the value of this function? Means ये किसका इंटीग्रेशन है, right? It means suppose that sin x का डेरिवेटिव दिया है आपको cos x, right? So then what is the value of this function? f of x क्या आएगा? चलो इंटीग्रेशन निकालो। So it will be integration of x plus integration of 1 by x into dx, x square by 2 plus log x plus c, x square by 2 plus log x plus c. That is first option, right? X square by 2 plus log mod of x, right? Log mod of x. That was the difference. Next, इसका इंटीग्रेशन क्या है? सर सी होगा ना सर? अभी अपने ओके सर बी होगा ना? यार बी होना चाहिए। बी होना चाहिए ना सर? x स्क्वायर बाय 2 एक्चुअली वहां पर बेस नहीं दिया है वहां पर उन्होंने, राइट? बेस बाय डिफॉल्ट 10 ही कंसीडर होता है। सर ए ऑप्शन में x स्क्वायर बाय 2 है ही नहीं, ए ऑप्शन सिर्फ x स्क्वायर है। बी है, मैंने बी सर बोला। सी इज ओनली x by 2 नॉट x square by 2। देख, सी x प्लस 1 by x into dx, राइट? इसका इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 प्लस log ऑफ mod x प्लस c, यही तो आएगा। सो बी सर नॉट सी। हाँ, बी आई एम टेलिंग नो, बी ही है। स्टूडेंट ने लिखा था इसलिए सी बोला था। नेक्स्ट, एंटी डेरिवेटिव ऑफ दिस। फोर बाहर निकालो, e raised to 3x. So sin 2x का इंटीग्रेशन होता है माइनस cos 2x by 2 minus 4 e raised to 3x by 3 plus c. So it will be minus half cos 2x minus 4 by 3 e raised to 3x plus c. ये कौन सा ऑप्शन है? माइनस हाफ से शुरू होने वाली ये दो ऑप्शन है। दो में से cos 2x minus 4 by 3 e raised to 3x plus 3. So यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, बट आंसर में हमारे माइनस है, so C will be the answer, right? Yes. Now next is very interesting question. You tell me how to find. This is special integral, right? Can I write this as integration of 1 upon root? बैठो ना सर। 3 minus 5x whole square. Can I write in this way? So this will be in the form of 1 upon root a square minus x square, right? So you know the formula, substitute in that. Okay. Next देखो, स्पेशल इंटीग्रेशन में मैंने बताया साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या आता है? रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. So this formula is related with sin inverse, right? So 1 upon a sin inverse x by a plus c. So it will be 1 upon a. a क्या है मेरा? अच्छा, instead of x it is 5x. So 1 by 5 आएगा starting में. So 1 by 5. The answer will be C, right? Next. अभी ये क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला। e raised to समथिंग है तो क्या आएगा? e raised to log of x 6 है, so can I write this as, see, e raised to 6 log x. Can I write this as e raised to log 6 into log means log of
x to the power 6. अंडरस्टूड? log और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट करके ऊपर बन जाएगा x raised to 6 minus x raised to 5 upon x raised to 4 minus x raised to 3. So we have to find integration of this part. Okay. Next. Here what you have to do? 1 minus cos x into cos square x into dx. कौन किसका इंटीग्रेशन लिख रहा है? तो फोर्थ का क्या आंसर है? फोर्थ का सिंप्लीफाई करो इसे. अगर मैं यहां से ऊपर से अगर इफ आई टेक x to the power 3 कॉमन, then it will be x to the power 2 minus x 3 2 सॉरी 3 पावर ले रहा हूं 3 and 2 और नीचे से मैं x to the power 3 x to the power 2 के लिए मुझे x नीचे से कॉमन लेना पड़ेगा, राइट? ओके. x अगर मैं कॉमन लेता हूं, सो x to the power square x to the power 3 by 3 plus c option. Okay. तो यहां पर क्या करना पड़ेगा? देखो, these are substitution type questions. Suppose that if I consider let x plus 2 को मैंने t कंसिडर किया. If I take derivative, then it will be dt upon dx will be my 1, right? So I can write as dx is equals to dt. So integration of, फिर से बताता हूँ, एक्चुअली सेम ही चीज है बट अच्छी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ. लेट x plus 2 को मैंने t ले लिया, इसका मतलब dx is equals to dt. अंडरस्टूड? 2 का डेरिवेटिव 0 है, x का डेरिवेटिव 1 है, dx dt upon dx मींस सेम. सो फ्रॉम दिस आई कैन राइट x को मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ t minus 2. x को सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ t minus 2. So my whole thing will convert into t minus 2 root t into dx, right? So my first aim was अंडर रूट में जो भी कंपोजिट फंक्शन है उसे मैंने सिंपल कर दिया. So it will be t minus 2 t raised to half into dt. So it will be t raised to 3 by 2 minus 2 t raised to 1 by 2. इसका इंटीग्रेशन आएगा 3 t to the power 5 by 2 upon 5 by 2 प्लस, अच्छी तरह से लिखता हूँ, so it will be t to the power 3 by 2 minus 2 t to the power 1 by 2. Understood? तो इसका आंसर आएगा t to the power 3 by 2 plus 1, that is 5 by 2. नीचे 5 by 2 का ऊपर बन जाएगा 2 by 5 माइनस 2 तो कांस्टेंट था, राइट? प्लस 1 हो जाएगा तो t to the power 3 by 2 अपॉन 2 by 3, बिकॉज 3 by 2 का उल्टा 2 by 3 प्लस c. So it will be 2 by 5 t. ओरिजिनल फंक्शन t क्या है? x plus 2 5 by 2 minus 2 2 is 4 by 3 x plus 2 raised to 3 by 2 plus c. So the answer is 2 by 5 से शुरू होने वाला है, ये एक है, एक है, दोनों में कौन सा है? x plus 2 raised to 5 by 2 minus, so first 4 by 3. So the answer is this one. Okay, A answer. Any doubt? No, sir. Okay. You didn't did the fifth one, sir. हाँ, फिफ्थ वाला, ठीक है. फिफ्थ में सब्स्टिट्यूट करोगे आप. चलो, मेरे पास 2-3 फॉर्मूलेज में सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. 1 माइनस कॉस एक्स को मैं कैन आई राइट दिस एज 2
कॉस है ना, माइनस साइन स्क्वायर x/2, बट ये तो लंबा हो जाएगा, इससे नहीं आएगा। सिंपल वे, इसका इंटीग्रेशन कर दो। ये किस चीज का डेरिवेटिव है? चलो सिंप्लीफाई कर दो। cosec square x, cosec square x into 1 is cosec square x minus cos x into cosec x into cosec x। इससे नहीं आ रहा है। वन प्लस cos x वो भी नहीं आएगा। वन माइनस cos x को अगर मैंने t ले लिया तो भी नहीं आएगा। इफ आई टेक 1 माइनस cos x इज इक्वल टू t, देन विल बी डेरिवेटिव आ जाएगा cos x का माइनस sin x, so sin x tx विल बी dt। सो cosec है चलेगा, sin x dx विल बी dt, देन cosec आएगा 1/, उल्टा करो ना, साइन का इनवर्स है, राइट। 2 sin x/2, वही मैंने पहले स्टार्टिंग में वही लिया था। 1 माइनस cos x को 2 sin square x/2 ले लो, हो जाएगा। So these were the basic substitution. After that we will take special integrals. Can you solve this? 22, 23, 24. Yeah. Sure. Better. चाय वाला है तो भेज दो। ट्वेंटी टू का C, 23, solve 22, 23, 24.
see, now for this 20-second, if I will take sin 2x को मैंने t ले लिया, so sin 2x का डेरिवेटिव cos 2x into 2 is equals to dt by dx. so dx आएगा मेरा 1/2 cos 2x into dt आ जाएगा dx, right? So dx will be what? dx is equals to dt upon 2 cos 2x, right? All right, one second. So dx will be dt upon 2 cos 2x. So मेरा पास x भी हो गया और t and dx substitute, right? So integration of sin x sin 2x को मैं t लिख सकता हूँ, so it will be root t. Okay, cos 2x into dx. Cos 2x into dx will be dt. Sorry, cos 2x into dx will be cos 2x into dx. Okay, wait. Will be dt. Actually, this should be in this form, right? So cos 2x as it is रहेगा and dx को मैं substitute कर रहा हूँ dt upon 2 cos 2x. So cos 2x will get cancelled. So it will be 1/2 root t into dt. So it will be 1/2 root t क्या है मेरा sin 2x into dt, या फिर इसका डायरेक्ट वे इंटीग्रेशन आप कर सकते हो. So it will be t to the power 3/2 upon 3/2. So it will be 1/2 into 2/3. t है मेरा sin 2x, right, raised to 3/2. So it will be 1/3 sin 2x plus c. 1/3 sin 2x raised to 3/2 plus c. Option C, right? Now 23rd. Yes बेटा, dt by 2 ले लिया हमने. थर्ड में मैंने अगर इसे कंसिडर कर दिया t, लेट x to the power 10 plus 10 to the power x is equals to t अगर ले लिया मैंने, राइट? सो डिफरेंशिएट x to the power n का होता है n, x to the power n minus 1 means 9 plus a to the power x का डेरिवेटिव होता है a to the power x into log a. dt by dx, right? So substitute these values, you will get the answer. ये हो जाएगा dt, राइट? सो ये बन जाएगा f dash of x अपॉन f of x into dx, जो को हो जाएगा log of f of x plus c. स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? बिकॉज ये dx हो जाएगा dt. सो दिस इज नथिंग बट इसका डेरिवेटिव f dash of x. सो द आंसर इज log of f of x. फंक्शन क्या है? x to the power 10
log of आंसर कौन सा आ रहा है आपका? आंसर सी 10 to the power x minus 10 to the power x to the power 10 minus 1. सो ये इसमें कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट ही कर दो. सो नीचे तो t आ जाएगा, ऊपर तो dt आ रहा है ना, सो log ऑफ t आ जाएगा ना. ये है आंसर, डी आंसर होगा. यस, डी इज करेक्ट. नेक्स्ट, कैन यू सॉल्व दिस वन 24th? Solve this 24 and 25th. Tomato, I am having tea. In question number 24, substitute x into e raised to x को t consider करो. 25th स्पेशल इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा. के लिए ट्रिग्नोमेट्री, सिंप्लीफाई द फंक्शन. Look here for this 24th question. Let x into e raised to x को मैंने t ले लिया, तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इज 1, so dt by dx. So my dx will be dt upon x e raised to x plus e raised to x, right? So ओरिजिनल फंक्शन मेरा बन जाएगा e raised to x, अगर इसमें से कॉमन लेगा तो x plus 1 मीन्स यही आ रहा है फिर से. So first as it is रख देता हूं मैं, cos स्क्वायर, इसे मैंने t कंसिडर कर दिया है, राइट, इनटू dx को मैं लिख सकता हूं dt अपॉन e raised to x, क्योंकि यही e raised to x अगर कॉमन लूंगा तो x plus 1 बन जाएगा, 1 plus x x plus 1 जो भी है. सो ये तो गेट कैंसल, सो इट विल बी 1 अपॉन cos square t into dt. So 1 by t means 1 upon cos is sec square t into dt. So it will be sec square t, original function क्या है? x e raised to x plus c. So sec square x e raised to x plus c. अच्छा,
ये इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना ना फिर से, सॉरी। सेक स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है? सेक स्क्वायर डेरिवेटिव है tan का, tan t प्लस सी, सो इट विल बी tan x की जगह पे मैं लिख सकता हूँ x e raised to x बस। So the B option. Look here. I hope you have not done this. Next. This is special integral. Root of 1 square plus 2x whole square into dx, right? So 1 upon root 1 plus x square, ये किसका है? देखो, instead of x here it is 2x, so 1/2 तो आएगा बाहर, right? So 1 upon root a square minus x square का फॉर्मूला, सॉरी प्लस x square का फॉर्मूला लगा दो, जहां पर आपका a है 1, x है 2x. That's all. Okay. ट्वेंटी फिफ्थ का सी आर आंसर, बाद में फिर से 2 कट जाएगा ये, जब आप 1/2 1/8 लिखोगे ना तो। नेक्स्ट, try to solve 26 and 27. ट्वेंटी सिक्स बी है क्या? ओके, 26 का आंसर तो ए दिया है, देखो द आंसर इज गिवन ए। सी, मुझे बताइए, ये है sin क्यूब x cos क्यूब x, कैन आई राइट दिस एज sin x cos x का क्यूब, राइट? मुझे बताइए sin x cos x, sin x into cos x का तो फॉर्मूला नहीं है मेरे पास, बट मेरे पास 2 sin x cos x का फॉर्मूला है। अब मुझे ब्रैकेट में 2 लाने के लिए यहाँ पर
3 था, मीन्स आई हैव एडेड मल्टीप्लाइड बाय 8, राइट? क्योंकि 2 का 3 पावर से मैं मल्टीप्लाई किया तो उसी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। सो 1/8 2 sin a cos a, फॉर्मूला है sin 2a, sin 2a. So can I write this as sin cube 2x? अब इसका फॉर्मूला लिखना है, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, इसका इंटीग्रल निकल। नेक्स्ट 28, 29, ये भी इजी है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से 1/, क्वाड्रेटिक बन जाएगा या 1/रूट क्वाड्रेटिक, राइट? ट्वेंटी 29 1/, क्वाड्रेटिक, 28 वाला 1/रूट क्वाड्रेटिक को आएगा, ये भी कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करो। सो ऑल आर लाइक दैट ओनली, सब्स्टिट्यूशन हो गए। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक तो आपको पता ही है। सपोज दैट मुझे इसका सॉल्व करना है, ये मुझे लीनियर अपॉन 1/रूट क्वाड्रेटिक है ना, सो माइनस अगर मैं बाहर निकलता हूँ, सो डिनोमिनेटर पे बन जाएगा x² + 3x + 8, राइट? 8 के फैक्टर 3 तो नहीं आते हैं, तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के लिए b/2 होल स्क्वायर दैट इज 6/4 ऐड और सब्ट्रैक्ट करो, सो इट विल बी रूट x² + 3x + 8 + 6/4 - 6/4, वो सिंप्लीफाई करने के बाद जो आता है, सो इट विल बी स्पेशल इंटीग्रल बन जाएगा आपका 1/रूट x² - a² समथिंग, ओके? सो यू विल गेट द आंसर। नेक्स्ट इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखो स्टार्टिंग 62 से करते हैं। 62 में क्या दिया देखो, मुझे बताइए 2 रूट है, पावर 1 ही है, सो आई कैन राइट दिस एज a इंटू फर्स्ट प्लस b इंटू सेकेंड। ये क्या है मेरा x अपॉन, देखो x अपॉन x - 1 और x - 2, सो इस फॉर्म में लिखना है मुझे, राइट? तो a और b की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, देखो मुझे पता है, इंस्टेड ऑफ ये इंटीग्रेशन में डायरेक्ट ही ले रहा हूं, a अपॉन आ जाएगा x - 1 प्लस b अपॉन x - 2। ओरिजिनल फंक्शन था आपका x अपॉन x - 1 x - 2, इंटीग्रेशन हटा दिया, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ax - 2 प्लस b इंटू x - 1 अपॉन x - 1 x - 2, ये ऊपर x है, x - 1 x - 2, सो डिनोमिनेटर तो हट गया, x मीन्स x + 0 है, सो x + 0 इज इक्वल्स टू, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड a का वैल्यू, अगर मुझे फाइंड आउट करना है, एक स्टूडेंट ने पूछा था सर a और b क्या है, तो मैं अभी बताना चाहता हूं बेटा, ये पार्शियल फ्रैक्शन के जब भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसके
फॉर्मूलेज है, अगर यहाँ पर फैक्टर्स दिए हैं जिसका पावर 1 है और डिफरेंट है, देन आई हैव टू राइट a अपॉन x माइनस a, x फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड, 3 हो गए तो c अपॉन थर्ड, 4 हो गए तो d अपॉन फोर्थ b आएगा होगा. ओके, सो if I want to find the value of a की मुझे वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो b को मुझे 0 करना है, मींस x का वैल्यू 1 रखना है. तो if I'll put x is equals to 1, so 1 is equals to a into 1 minus 2 means minus 1 plus 0. so a का वैल्यू आ जाएगा -1, a का वैल्यू -1 आएगा. b का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए पुट a को 0 करना है, x is equals to 2 कर दो, x is equals to 2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 is equals to a तो 0 हो जाएगा, b into 2 minus 1 means 1, so b का वैल्यू हो जाएगा 2. so a का वैल्यू -1, b का वैल्यू 2, a का वैल्यू -1 और b का वैल्यू 2, और फर्स्ट फैक्टर था x -1, सेकेंड था x -2. सो ये रैशनल का पार्शियल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया. अभी मुझे इससे का इंटीग्रेशन निकालना है इंडिविजुअल. सो माइनस बाहर आ गया, 1 अपॉन समथिंग का इंटीग्रल होता है लॉग ऑफ दैट समथिंग प्लस 2 into log of x minus 2 plus c. so minus x है ना. सो ये इन्होंने ऐसा इसे और सिंप्लीफाई किया है. सो 2 into log of माइनस है तो डिवाइड किया है, सो इट विल बी x minus 2 न्यूमरेटर में आएगा. सो व्हाट विल बी द आंसर? आंसर आया है किसी का? 62 का आंसर बी. सो दिस इज द आंसर, राइट. ठीक है, 2 है ना, तो ये 2 पावर ऊपर जाएगा. अंडरस्टूड? सो इट विल बी log x minus 2 whole square upon x minus 1 plus c. सिमिलरली यहाँ पर देखो, यहाँ पर स्क्वायर है, पार्शियल फॉर्मूला पार्शियल फॉर्म उसका क्या होगा देखो. नेक्स्ट हियर आल्सो सिंप्लीफाई दिस. इसे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, और इसे एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी, ये 4 हो जाएंगे ए बी सी डी, राइट. हियर क्वाड्रेटिक है नीचे, और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फिर से एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1 ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 को एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ले लो, देन ऑल्सो it will come. नेक्स्ट चीज है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. बाकी है ना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स. आई थिंक ये एग्जांपल इस टाइप का मैंने लिया था 72 वाला. इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का तो आपको पता है u into v, उसका इंटीग्रल आइलेटर यूज करो. इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, तो उसे फर्स्ट फंक्शन ले लो. ओके, सो यू कैन फाइंड आउट द राइट द आंसर ऑफ 72. वन स्टूडेंट बोल रहा था एक्स स्क्वायर प्लस 4 स्प्लिट कर सकते हो, नहीं हो स्प्लिट. एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं होगा, वो स्प्लिट नहीं होगा. कौन सा क्वेश्चन था वो? 167 जिसका यादन जो भी है, कौन से क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो आप?
ओके तो माइनस ऑफ माइनस लिख सकते हो ना, माइनस ऑफ माइनस ले लो, ठीक। सेवेंटी टू सॉल्व करो। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन भी मैं बताने वाला हूँ इसी चैप्टर, इसी लेक्चर में, सो स्टे फॉर दैट टॉपिक आल्सो। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर कर्व, उसका भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसी लेक्चर में, बिकॉज आई थिंक few student they are busy with their JEE मेंस एग्जाम चल रहे हैं शायद से कुछ बच्चों के। सर इसके बाद 71 भी सॉल्व करोगे? 71 वाला ठीक है। 71 वाला देखो, लॉग साइन ऑफ लॉग एक्स प्लस सेपरेट इंटीग्रल ले लो, राइट? मुझे पता है ये किसका डेरिवेटिव है, वो भी ये किसका डेरिवेटिव है, उल्टा जाओ ना क्वेश्चन से, इसकी तरफ जाओ, ओके तो आ जाएगा आपको। समझ में आ गया बेटा? देखो इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, तो किसका डेरिवेटिव है देखो, ओके इसे करते हो फर्स्ट एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, अच्छा u into v वाला हो, या फिर सिंप्लीफाई कर दो, फिर इंडिविजुअल सॉल्व करो। अच्छा 65th के जैसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा है सीटी में। देखो इसे अगर आप इंडिविजुअल सॉल्व करते हो तो साइन समथिंग का इंटीग्रेशन होगा माइनस कॉस ऑफ लॉग एक्स इंटू 1 बाय एक्स, सो उसमें तो वन टर्म आ जाएगा माइनस 1 बाय एक्स कॉस लॉग एक्स, राइट? फिर इसे सिंप्लीफाई कर दो, सो द आंसर इज डी। सिक्सटी फाइव। अच्छा वन बॉय इज टेलिंग 65 वाले के जैसा क्वेश्चन पूछा था इस बार। एक्स क्यूब कॉमन ले लो, एक्स क्यूब कॉमन ले लो, लोगे तो, या फिर प्लस और माइनस 1 भी करोगे तो भी चलेगा। अगर इसमें dx अपॉन एक्स क्यूब अगर कॉमन लेते हो तो x प्लस 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन से हो जाएगा 70 66 वाला।
ओके, आई एम सेंडिंग ऑल द आंसर्स एंड ऑल फुल सॉल्यूशन. ये बुक अच्छी है अरिहंत की. After that, I'll explain now application of definite integral. Wait. एक मिनट. Oh wait, this is second PDF. Wait. Okay. See. Now, this is also very interesting and very small topic. You can easily score in this topic. देखो, as I told you that integration is area under curve. तो कर्व दिया जाएगा जो कि इक्वेशन होगा. तो विथ रिस्पेक्ट टू क्या पूछा है? अगर देखो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स पूछा है तो एक्स के ऊपर शेड जो है एक्स पे वो कितना एरिया कट कर रहा है. अगर विथ रिस्पेक्ट टू वाई अगर पूछा है तो वाई पे कितना कट कर रहा है, राइट? Suppose that if the question is find the area under, suppose that pi by 2 से लेके pi by 4 तक sin x into dx पूछा है. sin x का कर्व तो आपको पता है, राइट? pi by 2 से लेके pi by 4 तक. So pi by 4 और pi by 2 90. ये अपर लिमिट होगा, ये लोअर लिमिट होगा, राइट? सो ये पाई बाई 4, ये पाई बाई 2. तो ये जो पार्ट है, ये जो एरिया है वो पूछा है. सो यू नो दैट इजीली यू कैन फाइंड आउट इट्स इंटीग्रल. इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज माइनस cos x, राइट? पाई बाई 4 से लेके पाई बाई 2 तक. सो माइनस cos ऑफ माइनस मीन्स cos of minus theta, cos of minus pi by upper limit pi by 2 minus cos of minus pi by 4. So whatever answer you are getting, that is a scalar quantity which will be the area under that curve. Yes. So अगर इंडिविजुअल फंक्शन दिए है, दो फंक्शन को स्प्लिट करके उसके लिमिट अगर अलग अलग दे तो देन यू कैन इजीली एड अप ऑल द थिंग्स. Area between two curve. Suppose that एक पैराबोला दिया है एंड एक लाइन दी है. सो उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कितना एरिया कवर करेगा? सो फॉर दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू सपोज दैट 16x और ये लाइन दिया है x, y इज इक्वल टू सॉरी y yeah x is equals to, क्योंकि x के लिए x is equals to 3. So put this value here, you will get the point of intersection. That will be the starting point. ये 0 0 हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक करना है. So what will be the common function? Put the limit, you will get the answer. While solving question, we will discuss all the point. Now start with this. Which of the curve is symmetrical about the origin? Origin से symmetric कौन सा है? Origin से. So solve question number 1, 2, 3. Basic questions है. The first question, which of the following curve is symmetric about the origin? Origin से अगर दोनों साइड फोल्ड करने के बाद सिमेट्रिक कौन सा आएगा? ये तो नहीं आएगा क्योंकि
x एक्सिस पे तो सिमेट्रिक है बट y एक्सिस पे नहीं है, सो दिस इज द करेक्ट आंसर. Which of the following is not symmetric about the both the axis? Both the axis पे symmetric कौन सा नहीं है? ये नहीं होगा, right? Next, which of the following curve is represented by y square is equals to 1 minus x? Value भी substitute कर दो, वो भी आएगा टेबल में, right? These are the basic questions. Which of the following are represented by 2x square plus 6x plus 5y square? ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे. हाँ, ये सॉल्व करो 6, 7 and 8. Look here. First question में find area bounded by the curve y is equals to minus x square, x axis and limit value दिए 1 to 4. Okay, y is equals to minus x square. इस टाइप का कर्व, एक मिनट, ग्राफ की भी जरूरत नहीं. लिमिटिंग वैल्यू क्या दी है? x is equals to 1 to 4, y into dx 1 to 4, y क्या है? minus x square into dx. So it will be माइनस बाहर निकालो 1 to 4, x cube by 3, लिमिटिंग वैल्यू है 1 to 4, राइट? सो c नहीं आएगा. सो 4 4 जा 4 3 जा 64 by 3 minus 1 by 3. So it will be 63 by 3. So it will be 21. Okay. Next. y is equals to x है. आंसर क्या होता है अपना? y into dx, लिमिटिंग वैल्यूज. लिमिट क्या दिया है? -1 to 4. So it will be -1 to 4. y फंक्शन क्या है? y is equals to again x into dx. So x का इंटीग्रेशन क्या आता है? x square by 2 -1 to 1 4. So it will be 4 का स्क्वायर 16 by 2 -1 अगर रखो तो +1 ही आ जाएगा. So it will be 15 by 2, that is 7.2. 15 by 2 दिया है 1 to 4, -1 to 4 x. So x square by 2, 4 का स्क्वायर 16 by 2 -1 by 2. So it will be 15 by 2. 7 आ रहा है यहाँ पर. आंसर क्या आ रहा है? 7 का seventh answer D. Okay, if I'll get time, we will continue this topic in next lecture because now it's 4 o'clock. So we'll continue this topic in next lecture. इसके PDF नोट्स मैं लेक्चर के पहले ही सेंड कर दूंगा आपको. Okay, any doubt in indefinite integration? ये टॉपिक चाहे तो मैं एक एक्स्ट्रा लेक्चर लेके कंप्लीट करूंगा because not time is not there. I have to reach Powai. I have another lecture. I thought I have free time, but I have lecture 5 o'clock at Powai, so I have to go there. Okay, I'll continue this lecture in next this chapter in next lecture. Take care. Bye. If you have any doubt, you can ask me. Sir, I live in Powai. Okay, come to. You are inviting me, Piyush. Okay, so I'm ending this meeting here. Take care and all the best for your exam.